Hello everyone, welcome to today's discussion on बिरसा मुंडा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले सप्ताह जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को पूरे देश में मनाया गया और ये दिवस श्री बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये टॉपिक हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम में कहाँ से रिलेट होता है, तो सबसे पहले ये इस पर नजर डालें। सिलेबस सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में यदि आप देखें तो मेंशन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेट होते हैं। और यदि मेन एग्जाम्स के सिलेबस में आप नजर डालें तो जनरल स्टडी पेपर 1 में Modern India history from about the middle of the 18th century until the present, significant events and personalities issues। तो यहां देखिए पर्सनालिटीज यहां मेंशन होता है। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे कुछ हर शताब्दियों में कई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण महापुरुष हुए हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। In a short life of only 25 years, the boy from Ulihatu in today's Jharkhand became the hero of the people's resistance against colonial exploitation. When the British authorities and local landlords were exploiting tribal communities, grabbing their lands and committing atrocities, Bhagwan Birsa rose against the social and economic injustice and led people to fight for their rights. Known as Dharti Aba, father of the earth, Bhagwan Birsa organized the Ulgulan or the Munda rebellion against British oppression in the late 1890s. The Ulgulan, of course, was much more than a rebellion. It was a fight for both justice and cultural identity. Bhagwan Birsa Munda, a straight understanding brought together, one the one hand, the right of tribal people to own and cultivate their lands without interference, and on the other hand, the importance of tribal custom and social values। जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि मात्र 25 वर्ष की छोटी सी जिंदगी में आज के झारखंड के उलिहातू का एक बालक औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध का नायक बन गया। जब ब्रिटिश अधिकारी और स्थानीय जमींदार आदिवासी समुदायों का शोषण कर रहे थे, उनकी जमीनें हड़प रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तब भगवान बिरसा इस सामाजिक और आर्थिक अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हुए और लोगों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। धरती आबा अर्थात पृथ्वी के पिता के रूप में जाने जाने वाले भगवान बिरसा ने 1890 के दशक में ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ उलगुलान या मुंडा विद्रोह का आयोजन किया। उलगुलान बेशक एक विद्रोह से कहीं अधिक था। यह न्याय और सांस्कृतिक पहचान दोनों के लिए लड़ाई थी। भगवान बिरसा मुंडा की सूक्ष्म समझ ने एक तरफ आदिवासी लोगों को बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी जमीन पर स्वामित्व और खेती करने के अधिकार को एक साथ लाया और दूसरी तरफ आदिवासी रीति रिवाजों और सामाजिक मूल्यों के महत्व को भी। नर्सिंग द सिक्स वाज ए पैशन फॉर हिम। ही वाज ट्रेन्ड एज ए हीलर एंड ए सीरीज of incidents made people believe that God had gifted him with a healing touch. There was a time when Bhagwan Birsa Munda and others were named among unsung
heroes of history in recent times. However, their valor and sacrifices have come to be appreciated in true light. During आज़ादी का अमृत महोत्सव, we celebrated the glorious history of India's culture and achievements, which help people, especially the youth, to learn more about the valiant contributions of great patriots who had remained lesser known earlier. This new engagement with history received a fillip when the government in 2021 decided to celebrate Bhagwan Birsa Munda's birth anniversary, November 15, as Janjatiya Gaurav Divas, to remember the contribution of the tribal freedom fighters. The commemoration of Bhagwan Birsa Munda's legacy put the long underrepresented tribal histories at the center of Indian history. These distinctive features of the tribal societies need to be nurtured for a better future of humankind. That is the precise reason behind the broader effort of the government launched during the last decade to give due recognitions to the importance of tribal communities in India's socio-cultural fabric. It has announced a series of programs and schemes with a few to take welfare point slogans and to the ground. For a more holistic approach to tribal development and welfare, the Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan was launched last month to fill the gaps in social infrastructure in nearly 63,000 tribal villages. Moreover, the Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Mahabhiyan focuses on 11 critical interventions to make welfare initiative more effective. अर्थात ये समझे आप कि बीमारों की सेवा करना उनके लिए जुनून था। उन्हें एक चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और घटनाओं की एक श्रृंखला ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि भगवान ने उन्हें उपचारात्मक स्पर्श का उपहार दिया है। एक समय था जब भगवान बिरसा मुंडा और अन्य का नाम इतिहास के गुमनाम नायकों में लिया जाता था। हालांकि हाल ही के दिनों में उनकी वीरता और बलिदान को सही मायने में सराहा जाने लगा है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान भारत की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाना, जिससे लोगों विशेषकर युवाओं को महान देशभक्तों के वीरतापूर्ण योगदान के बारे में अधिक जानने में मदद मिली, जो पहले कम ही जानी जाती थी। इतिहास के साथ इस नए जुड़ाव को तब बढ़ावा मिला जब सरकार ने 2021 में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का स्मरणोत्सव लंबे समय से उपेक्षित आदिवासी इतिहास को भारत के इतिहास के केंद्र में रखता है। मानव जाति के बेहतर भविष्य के लिए आदिवासी समाज की विशेषता को पोषित करने की आवश्यकता है। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने में आदिवासी समुदायों के महत्व को उचित मान्यता देने के लिए पिछले दशक के दौरान शुरू किए गए सरकार के व्यापक प्रयास के पीछे यही सटीक कारण है। इसने कल्याण को नारों से आगे बढ़ाकर जमीन पर उतारने के उद्देश्य कई कार्यक्रमों और योजनाओं की घोषणा की है। आदिवासी विकास और कल्याण के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण के लिए लगभग 63,000 आदिवासी गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए पिछले महीने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जन कल्याणकारी पहलों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करता है। अभी इस बारे में प्रेसिडेंट
द्रौपदी मुर्मू राइट्स लिखती हैं, एज द नेशन begins the year-long celebration of the 150th birth anniversary of this iconic figure in the history of modern India, a bow in gratitude to his blessed memory. I also recall how during my childhood, hearing the legends of the Bhagwan Birsa Munda made me and my friends feel very proud of our legacy. It was a humbling experience for me when I had an extensive interaction with representatives of 75 particularly vulnerable tribal groups who were invited to visit Rashtrapati Bhavan. They shared with me their joys and sorrows. If there is one accomplishment I am proud of, it is the fact that our tribal brothers and sisters see in more occupying the highest constitutional office in unprecedented recognition for us all. मतलब आप पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में कि जिसमें हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू लिखती हैं कि जैसा कि राष्ट्र आधुनिक भारत के इतिहास में इस प्रतिष्ठित व्यक्ति की 150वीं जयंती के वर्ष पर वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत कर रहा है और मैं उनकी इस पुण्य स्मृति को नमन करती हूँ, ऐसा उन्होंने लिखा। और उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे याद है कि कैसे बचपन में भगवान बिरसा मुंडा की गाथाएं सुनकर मुझे और मेरे दोस्तों को अपनी विरासत पर गर्व महसूस होता था। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे लिए एक विनम्र अनुभव था जब मैंने 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक बातचीत की। जिन्हें राष्ट्रपति भवन आने के लिए आमंत्रित किया गया था, उन्होंने मेरे साथ सुख दुख साझा किए। अगर कोई एक उपलब्धि है जिस पर मुझे गर्व है, ये है हमारे आदिवासी भाई बहन जो मुझे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होते हुए हम सभी के लिए भूतपूर्व मान्यता मानते हैं। तो ऐसा हमारी राष्ट्रपति महोदया ने लिखा। नाउ डू यू नो PVTGs are a sub-classification of the scheduled tribes or a section of scheduled tribes who are the considered more vulnerable than the regular scheduled tribes. The PVTG list was created by the government with the aim to improve and priority the living standards of endangered tribal groups. PVTG अनुसूचित जनजातियों का एक उपवर्गीकरण है या एसटी का एक वर्ग है जिसे सामान्य एसटी की तुलना में अधिक असुरक्षित माना जाता है। पीवीटीजी सूची सरकार द्वारा लुप्त प्राय आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को प्राथमिकता के आधार पर सुधारने के उद्देश्य से बनाई गई थी। On 29 November 2023, the Union Cabinet, chaired by Prime Ministers, had approved the प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. It was launched by the Prime Minister on the occasion of Janjati Gaura Divas on 15th November 2023 at Khunti, Jharkhand, targeting 75 particularly vulnerable tribal groups communities. आप सब जानते हैं कि 29 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी थी। इससे तक प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय को लक्षित करते हुए लॉन्च किया था। अंडर दिस अम्ब्रेला स्कीम 9 ministries will implement 11 inventions including a प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एंड जल जीवन मिशन एमंग अदर्स। और इन्हीं सब योजनाओं के अंतर्गत 9 मंत्रालय 11 कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण आवास योजना और जल जीवन मिशन आज शामिल है। Now, in this lecture, you know some points. Questions like what are the tribal movements? आदिवासी आंदोलन क्या है? Why are जनजाति गौरव दिवस सेलिब्रेटेड? अर्थात जनजाति गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है?
व्हाट इज द मुंडा रिबेलियन, मुंडा विद्रोह क्या है? व्हाट इज द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का सांस्कृतिक महत्व क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, औपनिवेशिक भारत के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन क्या है? हाउ ट्राइबल मूवमेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द पीजेंट मूवमेंट्स, अर्थात आदिवासी आंदोलन किसान आंदोलनों से किस प्रकार भिन्न है? व्हाट आर द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मीन्स विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह पीवीटीजी क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीवीटीजीज, पीवीटीजी के कल्याण के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं क्या है? व्हाट इज द प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, अर्थात प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान क्या है? एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया, भारत में जनजातियों संबंधी सरकारी योजनाएं क्या क्या? तो देखिए, ये जितने क्वेश्चन हम आपके सामने लिए हैं, इन सभी क्वेश्चंस पर आपको नजर डालना होगा हमारे लेक्चर्स के दौरान, और यदि आप हमारे लेक्चर्स को गंभीरता से सुन रहे होंगे तो मैं समझता हूं कि सभी आंसर आपके हमारे लेक्चर्स में मिलेंगे।